Good. At first, I would like to advise the students of class 10 to open their books. The name of the book is given already. First write the poem, The Trees. Yesterday, I started this poem, but it was not completed. So, today I am going to complete the remaining part or remaining stanzas. In short, I want to tell you that previously or yesterday, I taught you that trees are there confined in rooms in someone's campus. Trees are not there in forest. Forest is completely devoid of trees. No trees are there. Why? Because human beings are also purposely cutting trees for the decoration of their houses, for doing something, some other works. Okay. In rural areas, in remote areas, people use woods and trees as fuel. In this way, trees are, I think, very mercilessly being cut nowadays. So you have to stop it. The poet requests we people to stop this work, this very heinous work. काफ़ी खराब ये काम है जिसको हम बंद कर दें. इस तरह से आपको कल हमने दिखाया. फिर आज का स्टेंजा है. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichen. Yesterday I taught you this stanza so far as I remember. Lichen what I just gave you yesterday. Lichen small unicellular plants, वो छोटे छोटे काई की तरह के जो होते हैं पौधे, वो जैसे रॉक्स वगैरह पर या वुड्स वगैरह भी हैं कहीं कहीं आप देखेंगे वो काई की तरह जम जाते हैं. हाँ, ये लाइकेंस हो गए. और फिर इस तरह से कुछ और वर्ड्स ऊपर थे जो काफ़ी सिंपल है. स्केर्सली है. स्केर्सली मीन्स हार्डली, नहीं के बराबर जिसको आप कहते हैं. तो I refers to the poet. Poet says that he was sitting and just writing something, but he doesn't write the very departure, about the departure of the trees. No, he's writing something different. ये कुछ दूसरी चीज़ लिखता है. ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज़ है कि of the forest from the house, the night is fresh. Scarcely mention the departure of the forest from the house. Forest from the house. From the house, forest is going out. Means the forest is inside the house. Means trees are there inside and they are trying to come out just by breaking the floor of the veranda, just by breaking the pane of the windows. The twigs and leaves, everything was striving to come out. इस तरह से ये दिखा रहा है कि हर कोई प्रयास में है. The night is fresh, the whole moon shines. There is no piece of cloud in the sky. Stars are there, studded. Moon shines and bright sunlight, moonlight is there. Okay, ये काफ़ी बढ़िया फ्रेश जिसको कह लें आप, बहुत बढ़िया चमचम करता हुआ ये सूरज की रोशनी. मोनलिट नाइट है ये. In a sky is still open, the smell of leaves. Open sky means there is no cloud. Okay, the moon is clearly looking, stars are also clearly looking. So इधर से सब कुछ fresh है. It still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet him. Meet them, the moon is open like a mirror. Its peace flash now in the crown of the tallest oak. Still reaches like a voice of the room. Okay, the smell is just coming. Okay, to the poet, just like a voice comes, whisper sound comes to the ear of the poet. In the same way, the smell, the very beautiful perfume type. ओके, आपने कवि के लिए तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुगंधित है, इसलिए हम परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं. वो आ रहा है उसके नॉस्ट्रिल तक, उसके नाक के नथुने तक, और ये दिख रहा है, लग रहा है कि जैसे काफ़ी अच्छी महक है. माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स एंड हेड इज़ फुल ऑफ स्लो साउंड. धीरे धीरे कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है.
लगता है कि कहीं से कोई साउंड आ रही है, कहाँ से बोले क्या है वो, कौन सा साउंड है. Which tomorrow will be silent. Tomorrow the poet will not be able to listen to the very sound, whisper sound. ये कल नहीं सुनाई पड़ने वाला है. क्यों? Because tomorrow all the trees and the plants will go there to their original place, their native place. अपने native place में चले जाएंगे, forest में चले जाएंगे. इस तरह से tomorrow ये सारे whispers बंद हो जाएंगे. Listen, the glass is breaking. The whispering, that is slow sound, वो धीरे धीरे आवाज़ है, वो it is nothing but the slowly breaking of the window pane of glass. Anything जो शीशे का हो या कोई भी ऐसे मटेरियल का जो ट्रांसपेरेंट टाइप का भी होता है, तो वो ब्रेक कर रहा है और धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि प्रेशर इज एक्सर्टेड. ओके, योर लीव्स और ट्विग्स आर एक्सर्टिंग प्रेशर एंड दे आर ट्राइंग टू गो आउट. ये धीरे धीरे टूट रहा है, इससे टूटने की आवाज़ उसमें धीरे धीरे उसके कान में तक आ रही है. ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड. स्टम्बल मीन्स लुढ़कना. तो ट्रीज आर जस्ट फॉलिंग डाउन वन आफ्टर अनदर. इसमें से दे आर इन ए हरी, दे आर इन ए रश टू गो. वो काफ़ी तेज़ी में है कि वो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम लोग चले जाएं अपनी जगह. हाँ, इन टू द नाइट. हाँ, द होल नाइट दे वर जस्ट स्ट्राइविंग टू गो आउट. हाँ, एंड टिल टुमारो, बाय टुमारो दे विल बी देयर at their original places. अपनी ओरिजिनल जगह पर पहुंच जाएंगे. Winds rush to meet them. Winds are also blowing fast. Rush means to move fast. To blow. यहाँ पर हवा है, इसलिए हवा के लिए तो blow कर रहे हैं. आदमी भी रश करते हैं ना, जैसे I rush to you, okay, to tell you something. मैं बड़ी तेजी से आपके पास गया कुछ कहने के लिए. इस तरह से रश का मतलब आपको हमने बताया. तो winds भी यहाँ तेजी से blow करते हुए आती है उनसे मिलने के लिए. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Moon is there in the sky, but pieces are there. Why pieces? So it means the moon is looking to the gaps of the leaves. Leaves के gaps से वो दिख रहा है, तो वो full moon का view नहीं आ रहा. The poet is not having the full or complete view of the moon. The parts are just coming. Parts are coming to the sight of the poet. The poet is sighting the parts. वो गैप से दिखेगा तो पूरा कंप्लीट दिखेगा नहीं. इस तरह से वो गैप में से छोटा छोटा उसका टुकड़ा सा दिख रहा है. इसलिए कह रहा है कि वो पीसेस में. अदरवाइज मून इज नेवर सीन इनटू पीसेस. मून इज ऑलवेज ओके. वो क्रेसेंट होता है, जब ग्रहण लगता है तो क्रेसेंट होता है. कभी ऐसे ऐसे भी पतला हुआ, बड़ा हुआ, हो गया नहीं. ये टुकड़े टुकड़े होता हुआ ये कभी संभव नहीं है. यहाँ इसका सेंस वही है कि ये चांद जो है ना, वो पत्तों के बीच से, वो गैप से जो दिखता है तो पीसेस के रूप में आता है. Flash now in the crown of the tallest oak. Crown of the tallest oak. Oak tree is there, and just at the top of the crown, the oak tree, वो moon is shining in the sky. अब वो है, लेकिन नीचे कभी है तो उसको पीसेस में खूबसूरत दिख रहा है. वो पूरा कंप्लीट वो लग रहा है कि छोटा छोटा टुकड़ा सा है. इस तरह से आपने देखा इस पोएम के थ्रू पोएट क्या लेसन दे रहे हैं, क्या एक तरह का उपदेश आपको दे रहे हैं, कुछ ऐसे एडवाइस दे रहे हैं. ए ट्रीज शुड नॉट बी कन्फाइंड टू आवर हाउसेस. इसको अपने घर में कन्फाइन नहीं करें. इसकी जगह है जहाँ है वहाँ रखिए. और जंगलों को सूना नहीं करें. जंगलों को हम ऐसा ना कर दें कि वो खाली हो जाए, ताकि इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिले, तो उन पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा. इधर से हम बचाएं पेड़ को और जंगलों को. तो ये पोएम आपका फिनिश हुआ. फिर हम आ रहे हैं एक नेक्स्ट में. छोटा सा एक पोएम है जो बहुत ही शॉर्ट है, आप उसको देखेंगे. ये कार्ल सैनबर्ग का ये छोटा सा फॉग यू आर नोइंग. द फॉग इज अ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यू अंडरस्टैंड. छोटे छोटे जो जल के कण हैं वो वेपर के रूप में वो बहुत ही महीन होते हैं और फॉग की तरह से आता है. हम लोग का विजिबिलिटी वहाँ कभी कभी जीरो भी हो जाता है. कभी कभी ऐसा कुछ दिखेगा, कभी कभी लगेगा कुछ नहीं. तो फॉग इज नॉट डेंजरस बट इट कॉजेज डेंजर. ये डेंजरस है नहीं, लेकिन खतरा पैदा करता है. समटाइम्स व्हेन वी मूव वी गो समवेयर, तो व्हाट इज कमिंग फ्रॉम अहेड, सामने से क्या आ रहा है, हाँ, तो वो दिखेगा नहीं. उसमें कोलिजन हो एंड देन आफ्टर वी मीट विथ एन एक्सीडेंट. तो फॉग इज नॉट डेंजरस बट इट कॉजेज डेंजर.
ये खतरा पैदा कर देता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। ओके, कैट कम्स नॉनशलेंटली, साइलेंटली, फर्टिवली, बड़ा स्टीलली वो धीरे धीरे बिल्ली आती है, बिकॉज ऑफ द पैड ऑफ द क्लॉ। कैट के जो नीचे पैड होता है वो बहुत ही मुलायम है, कोई आवाज़ या कोई इस तरह की साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, ऐसे वो धीरे धीरे आगे रही। फिर कह रहा है कंपैरिजन है कि फॉग भी उसी तरह से वो बहुत स्लोली, द फॉग इज कमिंग वेरी फर्टिवली एंड स्टीलली, सीक्रेटली, नॉनशलेंटली इट इज कमिंग। It sits looking over harbor and city. It's looking over harbor and cities. Harbor meaning harbor, that is port, बंदरगाह, शहर, हर जगह वो अपने अपने प्रेजेंस को जमाए हुए है, वो बैठा हुआ है, अर्थात एवरीथिंग इज कवर्ड विथ फॉग। हर चीज़ कुहासे से आच्छादित है, पूरी तरह से वो ढका हुआ है, कवर्ड है। And silent haunches and then moves on. Haunch, okay, the back side bulges out. The back side bulge out तो haunch कर जाता है। अगर आप बैक साइड बचते हैं ना, जैसे आपके स्क्वाटिंग पोजीशन पर ऐसे बिल्ली वगैरह बैठती है तो क्या होता है, haunch करता है, पीछे का बैक जो है वो कम आउट, बल्ज आउट कर जाता है ना, प्रोट्रूडिंग, ये यहाँ पर haunch टाइप बनता है। इस तरह से ये बिल्ली ऐसे ही बैठती है, काफ़ी धीरे से स्क्वाटिंग पोजीशन में। स्क्वाट करते हैं तो बहुत लोग इसको कहते हैं कि स्क्वाट भी होता है, इसका मतलब है कि नहीं, हाउंच का सेंस वही है। और फॉग भी ठीक जस्ट लाइक कैट, या कंपैरिजन इसमें, फॉग इज कंपेयर टू कैट, ये बिल्ली से उसको कंपेयर किया गया है। और कैसे वो बिल्ली साइलेंटली आती है, उसी तरह से फॉग भी साइलेंटली आता है, एंड इट कवर्स ऑल द हार्बर्स एंड सिटीज़। और इस तरह से वहाँ काफ़ी हेजी हो जाता है, काफ़ी धुंधला सा लगता है, कुछ लगता नहीं, साफ साफ दिखाई पड़ रहा हो। तो इस तरह का ये आपको ये छोटा सा पोएम है, कार्ल सैंडबर्ग साहब ने इसको मेंशन किया है, और ये छोटा सा पोएम हमने आपको समझाया, फिनिश भी हो गया। तो हम समझते हैं कि ये फिनिश होने के बाद हम लोग कल फिर अगले पोएम पर लंच करेंगे। टुमारो आई विल कम एंड टीच यू, बिकॉज I have completed this poem and that remaining part also. So I stop it. Tomorrow I will come and teach you next poem. Thank you.